All right, friends. So, good morning, and I hope my voice is loud and clear. Hello, everyone. Okay. So, I think you can see the problem, a problem on a screen, on our screen. So, there is a beam over here. Okay. And इसका जो section है ये वाला, ये T section है. उस dimensions are given over here. So, what you have to do is, as a engineer, you need to determine what are the stresses at point H and point K. So basically, you want to know the contribution of these points, how much these points are contributing in a war against an external force or external moment. And these guys are subjected to an external moment of this beam is subjected to an external moment of mz, 5 kilonewton meter. Okay, and as you all know that this is y and this is x and this is z. Okay, so you have to calculate this mz, right? mz is given to you. You have to calculate bending stresses at point H and point K. So the very first thing which I believe you have to do in finding the stresses at point H and K will be determining the location of neutral axis. See, in yesterday's class, we have seen that stresses are equal to my upon I. So sigma x was equal to my upon I. So m, you know, for measuring y, you need to know the location of neutral axis. You know that location of neutral axis is on the centroid, but you have to determine that centroid. So for this y measurement, you need this guy centroid location, and definitely you have to calculate I also. So more or less, this problem is like calculating the centroids and second moment of area. So you have to do those calculations right now. I'll give you some time for that and start doing it immediately. So what I'm trying to say is कि let's say इसका centroid यहाँ पर है. Let's say for example. So this would be the axis. From here in 3D, this would be the axis CD. तो ये आपका neutral axis हो जाएगा. So what is the location of this neutral axis? Let's say from this location. So this is y bar over here, right? Or this is a single symmetric section. So you have symmetry along this axis. I mean along the y-axis, there is a symmetry. So you don't have to worry about that. But yes, you have to calculate y bar because you don't have symmetry about neutral axis. Otherwise, it would have been a very simple problem. So let's calculate a y bar. So you do yours, I'll do mine. Okay. I want everyone to do it and solve it by yourself. We have done this kind of problem earlier also. Okay. 37.22. आफ्ताब यार नहीं,
यार सॉरी, एक एरर है थोड़ा सा ना, क्वेश्चन मैच नहीं होगा। इसको 150 को 120 कर लो, एक काम करो तो ज्यादा बेटर होगा, हमारे पास कैलकुलेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा। 120 15 150 और सॉरी इसको 150 कर लो। यार यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है क्वेश्चन में, बुक में ही मिस्टेक है एक्चुअली में, कैलकुलेशन उन्होंने इससे किया हुआ है। 120 150 10 15, डू इट वंस मोर। One more time, Aftab. Well, correct over here also. This is 120, 150, 40, 120, 15, 10. ठीक है, now do it. बढ़ते जाओ। यस 45 करेक्ट। आई निकालो, अब आई निकालो, कैलकुलेट आई नाउ। आई ऑफ अ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, आई किस एक्सिस के अबाउट निकालोगे? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। आई का फिजिक्स में समझा चुका हूं आपको कि इट मेजर्स रेजिस्टेंस टू बेंडिंग इन आवर बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स क्लासेस। इसको थोड़ा नीचे बना देता है।
कहाँ अटक गए भाई, जल्दी करो। 174.106 इंटू 10 सूरज एरर है कहीं, चेक करो वापस से, प्लीज चेक इट वंस। हाँ 841.5 इंटू 10 to the power 4, ठीक है, करेक्ट। चलिए सही है। कैसे करोगे भाई आई कैलकुलेट, देख लेते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आप आई कैलकुलेट करोगे इसका, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो दैट विल बी IC1। IC1 आ जाएगा BD³/12 मतलब 150, राइट ओवर हियर रादर, IC1 इक्वल टू 150 क्यूब इंटू 10/12। तो ये तो फर्स्ट सेक्शन का अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब आपको एक्चुअली में इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो I1 आएगा आपका 150 क्यूब इंटू 10/12 प्लस एरिया इंटू डी स्क्वायर। एरिया कितना है, 10 इंटू 150 मल्टीप्लाई बाय 45 स्क्वायर, like that. So this will come out to be 585.1233 like this. I2 कितना आएगा, I2 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, पहले IC2 निकाल लो और फिर उसमें IC2 किसके अबाउट निकलेगा, IC2 इस एक्सिस के अबाउट निकलेगा, अबाउट दिस एक्सिस। तो ये कितना आएगा आपका 15 क्यूब इंटू 120/12 प्लस एरिया आपका है 15 इंटू 120 multiply by d square 13.37.5 like this. So on solving this you will get 2565,000. 2565,000. So total I will be I1 plus I2 and that boils down to 841,500. Okay. So you have got I about neutral axis. हमेशा हम I neutral axis के about calculate करेंगे. This is neutral axis. क्योंकि बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हो रही है, ठीक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी उतना ही आई आप कैलकुलेट करोगे एंड इसकी यूनिट होगी mm की पावर। ओके, so now you have I, now you have Y, now you have all the values given to you, just have to calculate stresses. So what I'll do is I'll just highlight this point, K and H. You have to calculate K and H now. Stresses at K and H. Do it. So this is your centroid. This is your neutral axis over here. The most important axis right now. And yeah, यहाँ से ये एक्सिस का डिस्टेंस आपका हो जाएगा, तो this is 40, so this is 110,
Right, that's 765 minus 50. 125. 125 minus 45. 8. M is positive, so minus 5 into 10 to the power 3. Y is 80 mm divided by 1000. And y upon I of the section along the axis. So that's 841500. 841500 into 10 to the power minus 12. You have to convert it into meters, right? So that's the use value coming out here. My upon so 5 divided by 6 47.5. Get minus 47.5. Okay, so you'll get minus 47.5. I hope you got this value right, everyone. I mean, I know you are faster than me for calculation part. I'm doing it slowly. Sigma h. Sigma h is equals to minus m 5 into 10 to the power 3. Now y is minus 37.5 क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो. So IZ would be like this 1000 over here and 841500 into 10 to the power minus 12. So you'll get a tension over here, right? There's a compression over here and there's a tension over here. 37.5 U into 5 U into 1000. 841500. 22.28. अच्छा ये तो है 37.5. Sorry, this is over there, right? हमको ये distance चाहिए. 37.5 तो ये distance है. So यहाँ का stress आ जाएगा आपके पास. ये कितना हो जाएगा? 45 minus 15 30. Okay, I'm sorry for that. So I'll do multiplication. I'll divide it by 37.5 and multiply it by 30 to get 17.82 as a tension. 17.82 megapascal tension. So this is how you can calculate sigma k and sigma h. अब now you have to determine कि maximum stresses कहाँ पर होगी आप. So on the these are, let's say for example, I know this is not a metal, this is a metal, but still we call it as a top fiber and we call it as a bottom fiber over here. So what's the difference between the top fiber and the bottom fiber is that this is located over here. So 80 plus 40 is 120. So I'll highlight this value. This is important. And over here we have 30 plus 15, that is 45. So already we have highlighted this. Now let us look into one important thing over here. Let me take it one more time. Let us understand some important points with regard to this formula.
So before that, let me remove unnecessary data which is not required now. I don't need K, I don't need H, I don't need anyone right now here. So maybe this is not required. Alright, so this is important for us, so that's why I have mentioned it over here. देखिए, तो we have a situation like this कि हमें यहाँ पर अब क्या निकालना है. आई मेंशन कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस कितनी होगी और कहाँ होगी, सिग्मा मैक्स एंड इट्स लोकेशन ऑल्सो. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है लोड बढ़ने पर वो ही सबसे पहले फेल होगा, राइट. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, आइदर वे यू कैन डू, नो प्रॉब्लम. स्ट्रेस इक्वल टू my अपॉन I. सो जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंडिंग स्ट्रेसेस है. my upon I can be written as section modulus. I upon y, sorry. So I z upon y is known as S, and S is known as section modulus. Okay. What is the physics behind section modulus? The physics behind section modulus is like that. S अगर ज्यादा होगा, more S, more section modulus, more will be IZ and less will be Y. मतलब ये कि मोर IZ और लेस Y का मतलब ये हुआ कि आपका I का वैल्यू ज्यादा है, करेक्ट. I का वैल्यू ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस टू बेंडिंग मोर. अब Y तो सेक्शन I तो ये तो देखो, एक बार सेक्शन फिक्स हो गया मतलब IZ फिक्स हो गया, ठीक है. अब इस I पर भी अगर आप Y को वेरी करोगे तो जितना कम Y होगा उतना ज्यादा S होगा, और जितना ज्यादा S होगा उतनी कम स्ट्रेसेस होंगी. तो स्ट्रेसेस is inversely proportional to 1 upon S. You can see over here. तो जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा वहां पर स्ट्रेसेस कम होगी, जिस भी सेक्शन का. और सेक्शन मॉडुलस होता है आपका I by Z, ठीक है. Now there is one more point I like to make over here is that कि ये बात तो सर इधर ही देख के समझ में आती है कि Y की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस होगी. तो Y की वैल्यू टॉप फाइबर पे ज्यादा है, बॉटम फाइबर पे ज्यादा है, टॉप फाइबर पे ज्यादा है. तो सिंपली यू कैन आइदर गेटिंग इनटू दिस सेक्शन मॉडुलस बिजनेस, यू कैन डायरेक्टली कॉल इट एज सिग्मा बी. सेक्शन मॉडुलस क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म होती है इसलिए मैंने डिफाइन करी यहां पर आपके सामने. So we have 5 into 10 to the power 3 into 120 divided by 1000. So this is my upon I. I will be as usual 8415123, and this is 10 to the power minus 12. So what we get is 12 120 into 5 600 divided by 8415000 into 10 to the power 12 divided by 10 to the power 6. 71.3 is the sigma max, and this is minus क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो ये क्वांटिटी प्लस होगी और हमारे साथ फॉर्मूला में माइनस चलता है, तो ये माइनस मतलब ये कंप्रेशन का मैक्सिमम है. टेंशन का मैक्सिमम कहाँ होगा सर? टेंशन का, दिस इज कंप्रेशन मैक्सिमम, दिस कंप्रेशन. So maximum in tension will be sir located at the bottom fibers, right? So minus 5 into 10 to the power 3 into location of bottommost fiber is 45. So 45 divided by 1000 divided by 8415000 into 10 to the power minus 12. So you get down with this, and 45 into 5. अच्छा ये नीचे है लोकेशन तो यहाँ माइनस आएगा, सो दैट विल गेट प्लस ओवरऑल. सिंपल कैलकुलेशंस वी आर डूइंग.
841500 into 10 to the power 6, 26.7. तो ये टेंशन का मैक्सिमम है, कंप्रेशन का मैक्सिमम है। अब हो सकता है कि आपकी जो बीम हो या बीम का मटेरियल हो वो टेंशन में ज्यादा वीक हो, मतलब उसकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया जो है वो लेट्स से 25 है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि सिग्मा अलाउेबल फॉर टेंशन इज लेट्स से 25, ये मेगा पास्कल है, सब मेगा पास्कल एंड सिग्मा अलाउेबल इन कंप्रेशन, वैसे तो हम अज्यूम करते हैं दोनों सेम है, बट एग्जांपल के लिए कभी पूछ लूं आपसे तो इज लेट्स से 100 मेगा पास्कल। तो बताओ मटेरियल कहां से फटेगा, बीम कहां से फटेगी? फ्रॉम वेयर द बीम विल फ्रैक्चर? यस, बॉटम, यस, बॉटम। व्हाई? क्योंकि बॉटम फाइबर पे टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं जो कि 26.7 मेगापास्कल है, और बीम उसे भी हैंडल नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका अलाउेबल टेंशन 25 ही है। एंड दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू, बट दैट डिपेंड्स टोटली वेदर देयर इज अ वेरिएशन और नॉट। ओके, जस्ट फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम कि मैं चाहता था कि आपको आई निकालना सिखा दूं, जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको आता होगा, और एक बार फॉर्मली मैं आपको वापस से सेंट्रॉइड निकालना सिखा दूं, जो भी ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डन एंड ऑलरेडी सीन दिस। फिजिक्स ऑफ आई वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। नाउ देयर इज वन मोर थिंग ओवर हियर नीड टू अंडरस्टैंड, कि मैंने आपको बताया था कि ये बात तो समझ में आ गई है आपको कि जो स्ट्रेसेस होती है बेंडिंग की, are maximum at where? Are maximum at top and bottom fibers. ठीक है, बट इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि while explaining you आई, मैंने आपको आई का जब कॉन्सेप्ट समझाया था, दैट टाइम आई व्हाट इज आई? आई मैंने आपको बताया था कि इट्स वाई स्क्वायर डी है, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ, और फॉर इंक्रीजिंग resistance to beam, resistance to bending, I should be more. That is what we have concluded. और दिख भी रहा है क्योंकि स्ट्रेसेस जो होती है वो आपकी एम वाई अपॉन आई होती है। तो जितना ज्यादा आई होगा सेक्शन का, उतनी ही कम बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होगी, मतलब पर यूनिट एरिया कंट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा, और जितना कम कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट एरिया, उतना ही ज्यादा देर तक वो ज्यादा मैग्नीट्यूड के लोड्स को वो सस्टेन कर पाएगा, उतनी ही लेट वो अपने सिग्मा अलाउेबल पे पहुंचेगा। फाइन सर। तो फॉर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू बेंडिंग आई शुड बी मोर, और आई शुड बी मोर के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये देखो आई ज्यादा कब होगा? जब वाई ज्यादा होगा, मतलब व्हेन एरिया इज लोकेटेड farther farther and farther from न्यूट्रल एक्सिस, अब बोल सकते हैं बेंडिंग की जगह, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। सो उसका रीजन ऐसा था
कि जितना ज्यादा आप दूर लोकेट करोगे, मतलब जितना ज्यादा एरिया आपका दूर लोकेटेड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी पे बात करेंगे, अब एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, लेट्स से दोनों का एरिया सेम है, फॉर एग्जांपल ये भी कुछ 200 यूनिट्स ऑफ एरिया है, ये भी लेट्स से फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स ऑफ एरिया. We know that this is much better from bending point of view. This is better in bending. Why? Because area is located farther. यहाँ पर. बट इसका एक पॉइंट ये है, तो एरिया जितनी ज्यादा दूर होगा ना, उसका एक फायदा ये मिलेगा आपको, देखिएगा इसको, उसका इसका आई ज्यादा होगा क्योंकि एरिया दूर तक लोकेटेड है. और इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर टॉप फाइबर्स पे स्ट्रेसेस भी तो सबसे ज्यादा हैं, तो जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस होंगी वहां पर मटेरियल ज्यादा रखना समझदारी भी तो होगी. तो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप हमेशा डिजाइन करें तो ध्यान रखें कि एक्सिस, बेंडिंग एक्सिस से एरिया दूर रखें, क्योंकि वहीं पर आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस जनरेट होने वाला है. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इफ यू डू सो यू विल इंश्योर दैट योर बेंडिंग स्ट्रेसेस इज kept at check, because second moment of area will be very high and it will reduce the value of bending stresses. Next is we'll compare some sections. So I'll ask you to answer it. So we have just defined stress as my upon I. Okay, and I have written sigma b is equals to m I upon y, and let's say we define section modulus I upon y max. तो दिस इज मोर रियलिस्टिक डेफिनेशन कि हम y max लेंगे हमेशा. y max मींस आइदर दिस, जो भी दूर लोकेटेड होगा न्यूट्रल एक्सिस से. यहां पर जैसे ये y max है आपका, दिस इज योर y max for this case, and for tension this is y max. This is tension, this is compression. ये तो मैं यहाँ पर y max लिख देता हूँ. चलिए, सो बेसिकली यहां पर बात यही आ जाती है कि जिसका आई मैक्स, या जिसका सॉरी बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम किसमें होगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम कब होगी, जब वाई मैक्स होगा. तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होगी वो होगी m अपॉन आई अपॉन वाई मैक्स, दैट इज s. तो s मोर सिग्मा b मैक्स लेस, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू उतनी ही कम होगी. समझते हैं कैसे, देखिए. फर्स्ट केस, so we call as economic sections. The only thing I'll may keep common is they have same area AA. You have to compare which one is better, one or two. Which one is better from resistance to bending point of view? Come on, guys.
सर्कल इज बेटर, 2 इज बेटर। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये बेंडिंग एक्सिस होगी, लाइक दिस। एक काम करो, डू द मैथ, इसको ए ले लो, इसको ए ले लो, इसको आर ले लो, डू द मैथ। यार मैं तो बिना देखी बोल सकता हूं कि सर्कल में क्या होता है, मैक्सिमम एरिया जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस यहां पर है। सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। जो मैक्सिमम एरिया है, मतलब जो मैक्सिमम एरिया लोकेटेड है वो सेंटर पे है, और यहाँ पे तो एरिया बहुत कम लोकेटेड है, तो उसका आई का वैल्यू इसके आई के वैल्यू से कम आएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम हर जगह एक जैसा तो है। वो आपको थोड़ा बड़ा बन गया इसलिए ऐसा लग रहा है कि सर ये बेटर है, दोनों का एरिया सेम है। तो ठीक है ना, हम क्यों गेस करें, आप चेक कर लो। आप I1 अपॉन Y1 मैक्स निकाल लो, और आप इधर I2 अपॉन Y2 मैक्स निकाल लो, क्या आता है चेक करो। जस्ट डू द मैथ एंड कैल कंपेयर S1 एंड S2, क्योंकि जो S1 और S2 में जो बेटर आएगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब जस्ट कैलकुलेट S1 अपॉन S2, सो डू द मैथ एंड कैलकुलेट S1 अपॉन S2। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है गेट के, कि S1 अपॉन S2 पूछते रहते हैं बार बार वो। आई पता है आपको सर्कल का कितना होता है? Anybody knows the value of I2? बताओ। अच्छा डी के फॉर्म में याद, ठीक है, तो पाई pi d raised to 4 upon 32. वेरी गुड, करो तो फिर, करो। I'll be back in a minute. Okay, do it. ओके लेट्स, हाँ I1 प्लस, क्योंकि 64 प्लस 64 32 होता है आई थिंक। यस यस यस, तो हमें तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए।
आंसर कितना आया? Sir, 64, not 32. written. A square upon A by 2. BD cube divided by 12 into y1 max is A by 2. So this is basic area. So A cube by 6. Right. Now I know that A square equal to pi by 4 t square. This we know. So let's substitute A is equals to pi by 4 d square की power 1 by 2 cube will be 3 by 2. So A cube will be equal to pi by 4 3 की power 2 d cube. So now S1 upon S2 is A cube upon 6 multiplied by pi d cube, so 32 equal to A cube means pi by 4 to power 3 by 2 d cube into 32 divided by 6 into pi d cube. So you get d cube, so d cube cancel. I hope this is right, okay? Pi divided by 4 power 1.5 and this 6. I feel like achievement when I do correct. So yeah, this is 1.18 only. So first one seems to be a much better option. So what exactly the logic over here is that I hope this is fine with you. Okay, you got what I've done. This is y max d by 2 and this is I1 and this is y1 max. Apart from it, this is same area. Both are having same area. Apart from this, everything is calculation. So now what we can conclude from here is that फर्स्ट वर्सेस सेकंड अगर हम करते हैं कंपेयर तो सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन एस, वी नो दैट. तो अगर मैं सिग्मा 1 लिखूं तो वो होगा एम अपॉन एस वन, मतलब ये 1 वाला केस है आपका स्क्वायर वाला, और सिग्मा 2 इज इक्वल टू एम अपॉन एस टू. अज्यूमिंग लेट्स अप्लाई सेम लोड टू बोथ sections. So basically, whenever we compare two things, it's like we compare apple to apple, right? So that's what we are doing. We are applying same moment so that we get the relation between them. Or that would be S2 upon S1 would be 1 divided by answer is 0.84. मतलब आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले में जो बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होगी वो 0.84 टाइम्स होगी सिग्मा 2 के, लाइक दैट. लेट्स से एग्जांपल के लिए लेट्स टेक सम वैल्यूज कि आपका सिग्मा 2 है 200 मेगापास्कल, मतलब सेकेंड वाले में 200 मेगापास्कल जनरेट हुआ है सर्कल वाले में. तो सिग्मा 1 कितना होगा? सिग्मा 1 होगा सर 846, okay, so just multiply by 200, 169.
0.25 megapascal. Okay, and let's say sigma allowable is how much? Sigma allowable, let's say 250 megapascal for the material, and the same material they have, need not to be mentioned. Same material, same area, everything is same. Only the geometry is different. Same material also. That's why their sigma allowable are same. तो फर्स्ट पहले दिस इंप्लाइज यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? तो पॉइंट्स टू रिमेंबर और टेक होम मैसेजेस, पॉइंट्स टू रिमेंबर या ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन ये है मेरा यहां पर. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड, that is bending moment, sigma max will reach allowable in कौन सी वाले में पूछेगा? इन सेकेंड सेक्शन, राइट? मतलब सर्कल वाले. मतलब आप दोनों में लोड एक साथ बढ़ाना चालू करोगे तो सेकेंड वाला पहले फेल हो जाएगा. दैट्स इट. और सेकेंडली दूसरे तरीके से देखें आप इसको, तो अगर मैं दोनों में स्ट्रेसेस सेम रखूं, इफ stress levels are kept same in both, I want answer from all of you. Then requirement of material will be less in 1 or 2. I want answer from you. अगर मैं सेम स्ट्रेस लेवल रखना चाहता हूं दोनों में, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल किसमें कम होगी? एवरीवन? Only 2 students, 3, 4, yeah, 1. Why? देखिए, अगर हम सेम स्ट्रेस लेवल रखते हैं यहां पर, अब सेम स्ट्रेस लेवल अगर आपको रखना है, सिग्मा सेम रखना है, लेट्स डू द मैथ अगेन. Sigma equal to m by s. So now sigma is constant and s is varying. Okay, तो sigma is constant, sigma को हम constant रखते हैं. तो we know that bending moment is equals to sigma into s. ठीक है, तो this is your load external. So sigma s will be, let's compare both of them. So for first, m equal to sigma s1. For second, m2 equal to sigma s2. Since s1 is more, s1 बड़ा s2 बड़ा है, s1 छोटा है ना, सेक्शन 1 छोटा है ना हमारा. हाँ, s1 बड़ा है, s1 बड़ा है. Since s1 is greater than s2, इसका मतलब क्या हुआ? s1 अगर s2 से बड़ा है तो m1 बड़ा होगा m2 से. मतलब we can apply more load in case 1 for same stress level for section 1. मतलब सेक्शन 1 ज्यादा लोड ले सकता है सेम स्ट्रेस लेवल इंड्यूस करके. बट अगर आपको दोनों पे लोडिंग भी सेम रखनी है, स्ट्रेस लेवल भी सेम रखना है, तो क्या होगा? तो सेक्शन 1 पे डेफिनेटली, अब आप क्या करते हो, इतना तो समझ में आ गया कि सर वी कैन अप्लाई मोर लोड इन सेक्शन 1 फॉर सेम स्ट्रेस लेवल. तो सेम स्ट्रेस लेवल के लिए फर्स्ट वाला ज्यादा लोड झेल सकता है. बट अगर दोनों में सेम लोड लगाओगे
तो क्या होगा, इसका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको स्ट्रेस लेवल सेम रखना है तो आप उसका एरिया कम कर दो, लाइक दैट, उस लोड पर। तो इकोनॉमिकली ये वाला सेक्शन आपका ज्यादा बेटर है। दिस इज अ मोर इकोनॉमिक सेक्शन देन दिस। तो सेक्शन 1 इज मोर इकोनॉमिक क्योंकि उसमें मटेरियल कम लगेगा। Then 2 from bending point of view. Okay, so that is the concept over here. आप चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कैलकुलेशन। आप क्या कर सकते हैं, यू विल डू इट एज एन होमवर्क दैट आप दोनों का स्ट्रेस लेवल सेम कर दें। अगर स्ट्रेस लेवल सेम लोड पर सेम स्ट्रेस लेवल अगर करोगे तो क्या होगा, आपका एस का वैल्यू एक का डिक्रीज हो जाएगा और एक का ज्यादा हो जाएगा, लाइक दैट। तो वो आप कंपेयर करके निकाल सकते हो कि कितना एरिया रिडक्शन कर सकते हो आप सेम स्ट्रेस लेवल जनरेट करने के लिए सेम लोड पर। So you can do that. The reduction in area. You can do the reduction in area. So कितना reduce कर सकते हो इसे compare करो for same load and same stress level. ठीक है, तो कुछ और ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब मैं इतनी डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूँ। यू कैन इफ यू वांट यू कैन डू इट एज एन होमवर्क और अदरवाइज यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। यहाँ पर अब मैं देखिए ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, ये ऐसा है, अब इसको मैंने ऐसा रख दिया। एरिया सेम है। हाँ, विच वन इज बेटर बताओ, कौन सा बेटर है? यहाँ पर एरिया देखो ना, 1 is better, right? So S1 upon S2 is root 2. इनफैक्ट ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का जो मैं दे रहा हूँ आपको। ये करिएगा, कभी टाइम मिलेगा आपको जब चेक करिएगा इसको, ठीक है? ये तो कर सकते हो आसानी से। चलो मैं देता हूँ, सॉल्व करो अभी। सॉल्व करो इसको। बी 1 calculate S1 upon S2 fast, fast everyone, fast. Tell me the value, what is coming? सेक्शन सेम है, उसको ऐसे इस तरह से नोट करके रख दिया बस।
Yes, correct. 2. 2 is the correct answer. Correct Urvi, very good. Correct Dhawan, correct Aftab. Perfect. Correct Shusti. ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे कि सेक्शन 1 में जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो हाफ द सेकेंड सेक्शन होंगी। तो मतलब आप देखोगे कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो सेकंड पहले फेल हो जाएगा, आप फर्स्ट में स्टिल और लोड बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली वन कैन हैंडल मोर लोड एज कंपेयर टू द सेकंड वन, एंड द better point is, I mean to say that the astonishing point is कि दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, फिर भी one can withstand double the loads that two can withstand. Okay, for that reason one is a more economical section as compared to two, and this is the physical interpretation of section modulus, that it helps us to calculate the economic sections, which one is better for the bending, resistance to bending, right? Okay, so this was a small introduction about bending. So we have started with bending now, and the story will continue now. Okay. Chali, for now this chapter is okay, but we'll be using my upon I very frequently. So we'll be using this MYI upon I very frequently. For now, I have given you the basic idea. The next is I'll give you a sheet, so you have to practice some questions out here. मैं mark कर देता हूँ. You can practice this. You can try ये, नहीं तो मैं बाद में कराऊंगा आपको, है ना? You just try it. Not sure आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा. You try this. ये तो अभी कर लिया आप लोगों ने शायद. ये भी मैंने करा दिया है वैसे तो. ये करिएगा. अच्छा क्वेश्चन है आईएएस का. ये सिविल के क्वेश्चन हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं. ठीक है, आंसर्स भी हैं, सारे कर सकते हो आप. ठीक, तो लेट मी कैन डू ऑल ऑफ देम. ये कंबाइंड लोडिंग का है वैसे तो, इसमें कोशिश करोगे तो ये भी बन जाएगा. ये थोड़ा सा चैलेंज है आपके लिए. और वैसे भी यार गेट 2008 का क्वेश्चन है, मैकेनिकल के गेट 2008 का पेपर अगर देख लोगे तो रियल क्वालिटी ऑफ गेट पता चलेगी आप. तो अब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. ठीक है, ये शीट मैं आज अपलोड कर दूंगा आपको, और दिस इज लाइक योर आंसर्स गिवन ओवर हियर, एंड दिस इज कन्वेंशनल क्वेश्चंस, राइट? ये उनके सॉल्यूशन का आंसर. तो अटेम्प्ट करिएगा इस शीट को आप. आंसर्स भी हैं बहुत, ऑल ऑफ देम मोस्टली आई हैव डिस्कस्ड, बट फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो हम डाउट लेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ shear stresses are generated. Okay, so this is going to be an interesting topic for you right now.
ठीक है, तो वी हैव अ बीम जहां पर ये पी लोड लग रहा है सेंटर पे 30 इंचेस सेंटर पे, और यहां से 15 इंचेस की दूरी पर मैंने एक एलिमेंट लिया है। ये पूरी एक ही मटेरियल की बीम है। हाँ, दो कलर इसलिए किए हैं ताकि मैं इसे हाईलाइट कर सकूं। आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस पार्ट, दैट्स इट। ये 6 इंचेस, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि वी हैव दिस 15 इंचेस 6 इंचेस ब्लॉक एंड यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा इसका, आप जानते हो ये लोड की वैल्यू है 1200, नहीं दिया है क्या, कहीं लिखा नहीं 1200, चलो लिख देता हूँ मैं 1200। सेंटर में है तो यार रिएक्शन आएगा 600 600। अब आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे इसका, इनफैक्ट let me do the calculation part for you over here only. How shear stresses are generated. So we all know that shear stresses are generated by this change in bending moment by per unit length will give us a shear stress. But how? How to feel that? Let us understand that. For that, we'll take a very simple problem. That there is a loading of 1200 Newton over here, or 1200 units right now, and this is 600, and this is 600. So this guy is 30, this guy is 30. Let's draw shear force and bending moment diagram. So this could be like 600 ऊपर गया, कांस्टेंट 1200 नीचे, कांस्टेंट 600 ऊपर गया, वी नो दिस नाउ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर दो इस पूरे पार्ट को बीम के बाहर निकालना है। ये कितने इंचेस पर है, 15 इंचेस पर, यहाँ 15 यूनिट्स पर है, और ये 6 है। इसे बाहर निकालने से पहले मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ कितना होगा। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का होता है, आपको याद होगा। और हम यहाँ पर वैल्यू देखना चाहते हैं, दिस इज नथिंग बट px. So if you take the section like this, this guy over here, let's say this is hh and kk. So this is your hh and this is your kk. तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है। So simply you have 15 into 600, that is how much? 15 into 600 is 9000. ठीक है, मैं यूनिट्स भी लिख रहा अभी। और 15 plus 6 21, 21 into 6 126, 126 12600. और ये तो सिंपल है कि यार यहाँ 9000 है और यहाँ 12600 है, तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स क्या आएगा आपका, देख लो एक बार, चेक कर लो। 12600 माइनस 900, हाँ नहीं है यार, डेल्टा एक्स कितना होगा आपका, आपको बहुत बड़ा काम नहीं है। इफ यू सॉल्व दिस विल गेट 600. 12600 minus 900 divided by, all right,
ठीक है सर, ये तो हो गया, वेरीफाइड है, तो हमने डिराइव ही किया, तो नॉट अ बिग डील इन दिस। बट बात ये है कि ये 600 जनरेट कैसे हुआ, दैट इज द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। तो यहाँ पर m है और यहाँ पर बेसिकली m प्लस डेल्टा m है, सीधी बात ही है। ये प्योर बेंडिंग नहीं है, प्योर बेंडिंग में आपने देखा था कि दोनों तरफ बेंडिंग मोमेंट सेम था पिछले केसेस में जो हम पढ़ रहे थे। बट नाउ वी हैव सीन दैट सिंस देयर इज अ shear force over here, we have a variable, we have an increasing bending moment over here, and there, because of this reason only, there will be shear stresses. So how to deal with this, let us understand. देखिए, ये तो आपको भी समझ में आ गया यहाँ तक। अब so if you see over here, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके ऊपर कंप्रेशन, इसके नीचे टेंशन, टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक इस बीम में ये जैसे पार्ट था हमारा, ये सेक्शन से इसको अलग कर देता हूं। मुझे देखना है इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है। यहाँ से इस पार्ट को पहले तो हमने इस पूरे पार्ट को बाहर निकाला, और जब इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट दिखेगा और शियर फोर्स दिखेगा एज एन इंटरनल फोर्स। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, इतने पार्ट को बाहर निकाला। दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, तो ये स्ट्रेसेस है सारे पॉइंट पर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा y अपॉन i और वो सब फॉर्मूले से। ठीक है, ये यहाँ पर 2 इंचेस है, ये 4 इंचेस, 6 इंचेस, तो दिस इज 1 इंच। तो ये 1 इंच यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रेस कितनी होगी 1 यूनिट पर। फिर इन्होंने क्या किया, ये ट्रेपेजॉइड है, ये ट्रेपेजॉइड बन गया, मतलब यहाँ पर इसका रिजल्टेंट अगर आप देखोगे, ये क्या, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा सर, इसका वॉल्यूम विल बी नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस स्ट्रेसेस। देखो ना, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया करोगे तो फोर्स ही तो आएगा। तो ये पूरा वॉल्यूम निकाल लोगे अगर आप, तो यहाँ का फोर्स आ जाएगा, और ये वाला वॉल्यूम निकाल लोगे तो यहाँ का फोर्स आ जाएगा। एंड सिंस you have different values of stresses over here, you will get different volumes and you will get different forces. So this is F1 and this is F2. If you say, so F1 is greater than F2. Like this. This is 2800, this is 2000. मतलब अगर आप इस सेक्शन को देखोगे यहाँ पर, तो there is a, this is not in equilibrium, right? क्योंकि यहाँ पे 2800 लग रहा है, यहाँ पे 2000 लग रहा है। तो बेसिकली होगा क्या, there must be some force 800 Newton acting like this. You can see that. This. Just to balance it. Over here. Like this. तो बेसिकली ये कहां से आया, देखो समझना। पिछले एग्जांपल में क्या था, मैं आपको बताता हूं कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट था, और इस बेंडिंग मोमेंट के कारण इस पूरे सेक्शन पर जो नॉर्मल फोर्सेस जनरेट हुए थे, टेंशन कंप्रेशन दोनों, उनका सम टोटल 0 था। वो तो यहाँ पर भी रहेगा, बट यहाँ पर हमने पूरा सेक्शन नहीं लिया है, हमने सिर्फ इतना लिया है, तो डेफिनेटली पूरा पे तो 0 नहीं होगा, तो ये 2000 आ गया। अब यहाँ पर भी एक्चुअली में 2000 ही आना चाहिए था, अगर यहाँ बेंडिंग मोमेंट उतना ही होता तो। और ये 2000 2000 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12600 है, तो उसके कारण से यहाँ पे हायर वैल्यू आई है इस लोड की, जिस कारण से यहाँ पर एक ये पार्ट इस सेक्शन के अक्रॉस इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है इस तरफ। ये फोर्स 800 न्यूटन का नेट फोर्स ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, लाइक दिस।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल फोर्स जनरेट होगा 800 न्यूटन का, एंड दिस 800 न्यूटन इज अ शियर फोर्स बेसिकली व्हिच इज जनरेटेड. बट अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये तो 600 होना चाहिए था. वो 600 एवरेज है, वो 600 एवरेज है. ये एक एक सेक्शन का है, ये इस सेक्शन का, इस सेक्शन का अलग, इस सेक्शन का अलग, इस सेक्शन का अलग, इस सेक्शन का अलग, इस सेक्शन का अलग. देखेंगे उसको भी वो 600 कैसे आता है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये सब, पूरा ऑपरेशन करके अंदर एक एक चीज को घुस के समझना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इसे समझ. मैंने भी डायग्राम इसलिए दिखा दिया आपको कि एक बार विजुअलाइजेशन हो जाए, बट विल डू द कैलकुलेशन एंड थिंग्स वुड बी क्लियर. तो सेम कंपैरिजन के लिए हम लोग वैल्यूज है हमारे पास. सो व्हाट आई डू इज आई टेक द सेम सेक्शन एंड आई टेक द सेम लोकेशन आल्सो 1 इंच ओवर हियर. So let's do that. Excuse me. चलिए, तो यहाँ पर हम इसका सेक्शन डिफाइन कर देते हैं. So whatever calculations was being done, we'll do it manually. तो हम यहाँ पर एक 1 इंच पर इस सेक्शन का पार्ट लेंगे. 1 इंच नहीं यार, वो 1 इंच लिखा है इसलिए मैं इंच बोल रहा हूँ, बट वी यूज मैट्रिक सिस्टम, राइट. सो दिस इज 3. I think this was whatever it was. Whatever नहीं, इसको चेक कर लेते ना, नहीं तो गलत आएगा. एरिया लेंगे तो 460. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जो कैलकुलेशन वहां किए थे वापस से हम लोग भी करेंगे, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. तो अब मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट बाहर निकाल दिया. I've taken this part out. This part. अब जब मैं इस पार्ट को बाहर निकालूंगा, तो ये वही सेक्शन है. कौन सा वाला? ये सेक्शन तो यही होगा ना आपका, तो कभी भूलना मत, ये सेक्शन है आपका. तो ये दिखेगा मुझे यहाँ पर. हाँ सर, ये दिखेगा. अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस. यहाँ से हम वाई मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, वी नो दैट. अब इसे मैं यहाँ पर भी एक काम करता हूँ, जस्ट डू द देखो यार, चीजें सिर्फ फॉर्मूला बताने से भी खत्म हो सकती है. इट वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स, बट आई वांट टू फील यू द सब्जेक्ट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. कहीं कभी कुछ याद ना करना पड़े. एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर. चलिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाओगे, बड़ा शांति से बनाना है हमें. बेंडिंग मोमेंट कैसा था वहां पर? पॉजिटिव था. तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा है, दिस इज द बेंडिंग. So m1 will be equal to m1 will be equal to 9000. m2 will be equal to 12000. कितना था भाई? 600. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए. आई होप यू रिमेम्बर दिस कि हमने इसे कट करा है तो यहाँ पे शेयर फोर्स भी आएंगे, तो वो शेयर फोर्स भी बना लेते हैं. ऑल्दो काम का नहीं है बट फिर भी बना लेते हैं. शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है. तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर आपका शेयर फोर्स का जो वैल्यू होगा, ये शेयर फोर्स है आपका, वो 600 न्यूटन होगा, या जो भी यूनिट्स हैं ये भी 600. और अब मैं इसे वापस से, ये तो हमारा पूरा का पूरा एक बार का वापस नीचे चलता है.
इंटरनल फोर्सेस दिखा दिए मैंने सारे। ठीक है, अभी मोमेंट फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ से शियर फोर्सेस हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप कट लगाओगे तो इंटरनल फोर्सेस दिखेंगे, तो ये दो इधर इंटरनल होगा, ये दो वी और एम इधर होगा, तो ये तो दिखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर ऑलवेज। नाउ यहां पर अब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं, एंड दैट वुड बी लाइक कंप्रेशन ऊपर होगा, और टेंशन नीचे। सिमिलरली यहां पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, और ऑब्जेक्टिव वाज कि ये वाला जो पार्ट है आपका, जो 1 इंच ऊपर है, यहां पर भी और यहां पर भी, हमें इस पार्ट को अलग करना है। इस पार्ट को, ठीक है, तो इस पार्ट को अलग करने के लिए एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट पूरे को अलग करना है। आई वांट दिस ऑल separated and I want to do the analysis first. So what should we do over here? देखिए, सबसे पहले तो यहां पर स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अगर मैं 2D में दिखाऊं आपको इसको तो ज्यादा सिंपल अभी हम कैलकुलेशन करने के लिए समझ सकते हैं चीजों को। लेट मी यूज अ शेप बॉक्स। ठीक है, 2D में देखोगे तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये रहा आपका वो लोकेशन। यहां पर कुछ स्ट्रेस होगी कंप्रेसिव, यहां पर कंप्रेसिव मैक्सिमम, और यहाँ पर भी होगी कंप्रेसिव, और यहाँ पर भी मैक्सिमम होगी इस पार्ट की। और तो ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कोई डाउट नहीं, और ये जीरो की तरफ जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे ये जीरो हो जाएगा, सो दैट मस्ट बी द रियलिटी। ठीक है, ये टेंसाइल आ गया। Now what you have to do is you have to calculate the value over here, ताकि यहाँ पर हमें पता है कि ये 1 यूनिट्स है और ये आपका 3 यूनिट्स है। नेक्स्ट आपको ये पता है कि फिर हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेपेजियम का वॉल्यूम आ जाएगा और हमारे पास फोर्सेस आ जाएंगे। चलिए, अब 2 टीम में बढ़ जाए। ठीक है, शुरुआत के 7 स्टूडेंट्स, आफ्ताब, आशी, भूषण, धनश्री, धवल, रितेश, निखिल।
ठीक है, आप निखिल तक, आप लोग लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करें, नीलेश, ऋतुजा, सोनाली, सृष्टि, सूरज, उर्वी, आप लोग राइट साइड का कैलकुलेट करें। मतलब ऋतुजा नीलेश के बाद जो ऋतुजा एंड ऑल दोस गाइस, ऋतुजा टीम, ऋतुजा, सोनाली, सृष्टि, सूरज सॉरी एंड उर्वी, आप लोग ये कैलकुलेट करें। यहाँ का वैल्यू स्ट्रेस कैलकुलेट करें, यहाँ का स्ट्रेस वैल्यू कैलकुलेट करें, और आप यहाँ का करें और यहाँ का। चलिए, और मैं चारों करता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट द लेफ्ट साइड टीम? यस, 125 एंड 375, या 375, करेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रेसेस आ चुकी हैं आपके पास। अब एक काम करें, इस पार्ट को अलग कर लें। अब जब आप इस पार्ट को अलग करोगे, जब आप इस पार्ट को अलग करोगे, ये आपका फ्रंट ब्लू है, ठीक है, ये फ्रंट ब्लू है। तो जब कट करोगे तो यहां पर भी एक रीजन आएगा आपका, ये येलो रीजन, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ये अब यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस दिखेंगे कुछ ना कुछ, वो इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे ये पता करना है। तो पहले तो यार रिजल्टेंट फोर्सेस देख लो कितने आएंगे। ये वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, और ये वाला, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो पूरा, इस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस दिस, इसे माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। वॉल्यूम कितना आएगा, राइट साइड का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 525 माइनस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। ट्वेंटी 800 लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो 375 प्लस 125,
मतलब यहाँ पर 2800 का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 2000 का। तो भाई यहाँ पर इंटरनल फोर्स कितना आना चाहिए आप बताओ इक्विलिब्रियम के लिए? या न्यूटन नहीं लिखेंगे, यूनिट्स में। So this is the internal force, internal shear force जनरेट। अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं अगर इसकी स्लाइसिंग करूंगा ऐसे, मतलब स्लाइसिंग से मतलब मैं नीचे ले चलता हूं, इस डायग्राम को नहीं बिगाड़ रहा हूं। मतलब ये तो मैंने y इक्वल टू 1 पे ले लिया था, करेक्ट ना? इसी जगह मैं y को चेंज करता चला जाऊं, मतलब y एक सेक्शन यहां ले लूं, एक सेक्शन यहां ले लूं, यहाँ लाइक दिस, यहाँ -1 यहाँ स्लाइसेस बनाऊंगा, तो हर जगह अलग अलग फोर्सेस आएंगे। हर कहीं ऐसा तो ना कि 800 आएगा हर जगह। क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे यहां से ले लूंगा, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां ले लोगे तो फिर आपका ये एरिया आ जाएगा पूरा का पूरा, और फिर यहाँ पर आपका ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा, दोनों को माइनस करोगे, जो बचेगा वो फोर्स आएगा वहां पर, वो सेम थोड़ी ना होगा। अच्छा तो चेक करके देख लो, तो प्रॉब्लम, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं y इक्वल टू 0 लेता हूं, ये तो y इक्वल टू 1 लिया मैंने, y इक्वल टू 0 लूंगा मैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू 0 लूंगा मैं अगर, करो चलो कैलकुलेशन, y इक्वल टू 0 का कितना आता है, चीजें क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू के साथ खेल रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला डिराइव करके सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे हम लोग। तो ये y इक्वल टू 0 पे देख लो आप क्या रहा है, 525, अब तो ट्राइंगल है तो 525 हाफ इंटू हाइट, कंफर्म करो, 3150 कंफर्म करो, टू 2250 कंफर्म करो, तो 900 कंफर्म करो जरा। मतलब 900 न्यूटन का शियर फोर्स यहाँ पर आया है बीम के बीच में। यहाँ 800 आया, मतलब ये बात तो सत्य हो गई है कि जैसे जैसे वाई चेंज होगा आपका, जैसे जैसे वाई चेंज होगा आपका, वैसे वैसे ये 800 900 ये बढ़ता चला जा रहा है। देखो क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता चला जाएगा, दोनों का इंडिविजुअल वैल्यूज बढ़ता चला जाएगा और डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और डिफरेंस ही तो ये 900 न्यूटन लेकर आ रहा है। सर ये बात समझ गए चलो हम आपकी, कि हर एक स्लाइस पर, हर एक सेक्शन पर यहाँ पर 800 900 तक आ रहा है। फिर अब ये देखो, ये यहाँ से चालू होगा, ये 0 से चालू होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर डिफरेंस कुछ नहीं होगा, तो ये 0 से चालू होगा, ये 800 तक आया और ये 900 तक आया, फिर ये 900 से वापस सिमेट्री की प्रॉब्लम है तो ये 800 तक जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका शेयर फोर्स का वैल्यू आ गया। स्ट्रेस क्या होगी? स्ट्रेस कुछ नहीं, 800 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस निकाल लो, डिवाइडेड बाय दिस एरिया। अब मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब डेप्थ में बात कर रहा हूँ, मतलब आप लोग पीएचडी कर रहे हो एक तरीके से समझ लो। मैं आपको एग्जैक्ट फिजिक्स समझा रहा हूँ कि होता क्या है बॉडीज के अंदर, समझना बहुत ध्यान से। This is not written in books. This is by my experience. I'm telling you, by doing lots of calculations and lots of by understanding and by experience. Okay.
अब समझना देना सर, यहाँ पर तो स्ट्रेस होगी, वो क्या होगी 800 डिवाइडेड बाय दिस एरिया, व्हाटएवर इज दिस एरिया, डजंट मैटर। ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी देखते हैं। I'll take this as a copy first. Okay, I know that you cannot, but now you have to. Thank you very much. देखो, इस 800 के कारण क्या होगा, स्ट्रेसेस डेवलप होंगी टाउ, टाउ एवरेज, जो हर जगह ऐसे एवरेज 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 हर पॉइंट पे होगी। और इन सब टाउ में मैं जब मैं छोटा छोटा एरिया मल्टीप्लाई करूंगा इस येलो सेक्शन का, तो मुझे मिल जाएगा उस छोटे छोटे एरिया का कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन यहां पर 800 है, लाइक दैट। अब अगर आप यहां पर एलिमेंट ले लो, इसका छोटा सा पार्ट ले लो स्टेट ऑफ स्ट्रेस चेक करने के लिए, तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसी आ रही है अभी के लिए देखो, तो सिर्फ मैं शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो एक है आपका यहां पर, और आप जानते हो एक यहां पर भी आएगा कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस ओवर हियर आल्सो। जो टाउ आपका आपको यहां दिख रहा है ना, ये टाउ आपको जो दिख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे भी तो आएगा, और ये मैक्सिमम सेंटर पर है, ये मैक्सिमम सेंटर पर है, समझना बहुत ज्यादा ध्यान से। मतलब ये पूरा पार्ट बना लिया मैंने अब आपका, ये पूरा एंटायर, और ये न्यूट्रल एक्सिस है आपकी, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो हर एक उस पे अगर आप देखोगे तो शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है इस तरीके से, और हर एक सेक्शन पर अगर किसी हर एक इस पे देखोगे आप, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जिस्ट करती है शियर स्ट्रेसेस, मैं बता चुका हूं आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, करेक्ट। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इस सेक्शन पर, ये सेंटर वाला सेक्शन है ये वाला, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम शेयर फोर्स है, तो शेयर फोर्स सबसे ज्यादा, शेयर स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होगी, तो शेयर स्ट्रेसेस डायग्राम बनाना, और धीरे धीरे ये रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो गया। This is going to be the actual thing over there. और अगर मैं 1 मिनट यहाँ पर देखूं, बस एक गलती हमने कर दी, पता है क्या, कि ये इधर है तो ये इधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, नीचे नीचे आएगा ना यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इधर है, ये देखो ना इधर वाली जो स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ एक्ट होगी लाइक दिस, तो ये इधर आएगी ना, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ये इधर आएगी और ये इधर, तो मैं इसको ऐसे बना, अरे वापस सर, सॉरी, बहुत खतरनाक पॉइंट आने वाला है, बस ध्यान रखना 2 मिनट में, चैप्टर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है, फिर तो फॉर्मूला बता दूंगा मैं और सॉल्व करना तो वो तो बहुत आप लोगों के लिए बच्चों वाला। हाँ, तो क्या कह रहे थे सर आप, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और यहाँ सबसे कम,
तो ये वेरिएबल टाउ का यहाँ पर फंक्शन है, मतलब ये टाउ y के साथ वेरी कर रही है। और इस जब वेरिएबल टाउ y में, ध्यान से सुनना, इस जब वेरिएबल टाउ y में आप ये पूरा मतलब डीए और इसको इंटीग्रेट करोगे और सॉल्व करोगे, बताओ आंसर क्या आना चाहिए? बताओ आंसर क्या आना चाहिए? इसका जवाब दे दिया मतलब बीम्स में मास्टर हो गया, कुछ नहीं बचा समझने के लिए। बताओ आंसर क्या आना चाहिए? हिंट दे रहा हूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कहां गया भाई? यस यस यस, दिस गाय 600। यहां से पैदा होता है ये 600 आपका। समझ में आया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? dm by dx इक्वल टू डेल्टा v समझाया था आपको। 600, दिस इज 600 यूनिट, 600 shear force। ये वैसे आ रहा है तो मतलब इस प्लेन पर वेरिएबल shear stress है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी, टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, आई विल सिंपली से दैट, I'll repeat the whole story कि अक्रॉस द सेक्शन, अगर एक सेक्शन दो सेक्शन में कंपेयर करूं तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट और यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज अलग अलग होगी। पॉइंट नंबर 1, because of this difference in the bending values, bending moment values, there will be a difference in the normal stresses acting on these two different sections. Because of the difference in the normal stresses in the two different sections, there will be difference in the normal forces, like this shown over here. There will be 2000, there will be 2800, because of which, because of this imbalance which was created because of the difference in the bending moment, there will be a shear force existing over here whose values is 800 newton. Why I'm calling it as a shear force? Because this is acting over here at the yellow section, it's parallel to the cross section area. Because of this 800 magnitude shear force, there will be stresses developed on this section, and we have considered that an average stress. So whatever will be the average stress over here will be the average stress over here. और अगर मैं ऐसे स्लाइसिंग करता चला जाऊं स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तो हर एक सेक्शन पर मुझे यहाँ पर दिखेगा क्या? शेयर फोर्स दिखेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक शेयर फोर्स दिखेगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस होंगी, और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी। आई रिपीट कि जैसे जैसे मैं स्लाइसिंग करूंगा तो अलग अलग स्लाइसेस पे मुझे अलग अलग शेयर फोर्सेस मिलेंगे, और उन अलग अलग शेयर फोर्सेस पे मुझे अलग अलग शेयर स्ट्रेसेस मिलेगी। हर एक प्लेन पर मुझे स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन को मिल गया तो मैं उसी को यहाँ पर भी कोट कर सकता हूँ। तो वो मुझे वेरिएबल यहाँ पर मिल जाएगा, और एक बार मुझे यहाँ वेरिएबल मिल गया, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। That is the concept over here. ठीक है, तो अब मैं आपको टाउ एज अ फंक्शन ऑफ y का फॉर्मूला बता देता हूँ। ऐसे डिराइव करते हैं उसको, जो मैंने कैलकुलेशन करके किया वो आप वेरिएबल्स लेके कैलकुलेट कर सकते हो, वो जरूरत नहीं है, हमको अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई जब आपके लिए। So the value of formula for tau y is vq upon I. या डाउट हो तो पूछ लो किसी को प्लीज, if you have any doubt please ask. v यहाँ पर आपको कहां से लेना है? SFD से लेना है। q is first moment of ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया? सिलेक्टेड एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो दिस इज लाइक आवर सिलेक्टेड वन ना,
तो जिसको भी सिलेक्ट करोगे तो दिस इज द सिलेक्टेड एरिया, है ना। मैंने नाम दिया है इसको सिलेक्टेड एरिया जस्ट यहाँ पे लिखने के लिए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ सिलेक्टेड एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। I is second moment of area of section and B is width of section। चलिए करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमें y इक्वल टू 1 पे निकालना है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड एरिया हो गया आपका, फिर दिस इज योर सिलेक्टेड एरिया। तो ये सिलेक्टेड एरिया हो गया, मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूं। अब ये है आपका 4, ये है आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाउ एज अ फंक्शन ऑफ y अगर आपको निकालना है तो v हो जाएगा आपका 600, विड्थ हो जाएगी आपकी, q हो जाएगा। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है इसका, तो कैसे निकालोगे, पूरे के पूरे एरिया को इसके सेंट्रोइड पर रख दो और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले लो। तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, ये 1 है, ये 1 है, 2। पूरा का पूरा एरिया अदर रख दिया, 4 2 8 और 8 × 2, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हो गया आपका। अपॉन आई क्या होगा, इस पूरे सेक्शन का लोगे आप तो 3 + 3 6, 6³ × 4 डिवाइडेड बाय 12 और विड्थ हो गई आपकी 4। जस्ट डू द मैथ, 600 × 16 600 × 16 × 12 divided by 6। 33.33। This is the value of stress to get 33.33। यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट का तो ध्यान दो ही मतलब। This is how you calculate shear stresses at different locations। अब एक चीज आप सीख सकते हो, यहां से उल्टा कर लो, उल्टा कर सकते हो कि यहां पर अब आपको मान लो, लेट्स डू द रिवर्स केस, कि अब यहां पर आपको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पता चल गई है कितनी, 33.33। तो ये 33.33 है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब जरा आप इसे सेक्शन लिया था ना आपने, ले लीजिए इसको वापस से। तो यहां पर अब मैंने कट लगाया है, इसको देख रहा हूं मैं। तो ये टाउ यहां पर निकला कितना सर, यहां पे टाउ निकला 33.3। तो यहां पर कितना होगा, एवरेज है तो 33.33, यहाँ पर भी उतना ही होगा टाउ। तो अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एरिया कितना लिया है मैंने, सेक्शन कितना लिया था मैंने, ये कितने कितने उसका लिया था हमने, याद है आपको इसकी, ये कितनी थी, आई थिंक 6 था, राइट। ये 6 था और ये डेप्थ थी 4। तो 6 × 4
tau into a 24 कितना आ रहा है? आना चाहिए, यस इट्स कमिंग आउट 800 और वही तो लोड था आपका. So I just did it again. I completed the cycle. Started with this and ended with this. So that gives a crystal clear explanation of how the shear stresses are generated. Okay. So I hope you are comfortable with this. Any case, any doubt, please let me know. Any question, any comments? छोटा सा और बचा है ये. हम इसमें पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इसे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट, कैसा वेरिएशन होता है. Then we'll start with a new chapter, deflection, tomorrow. Tomorrow मतलब Sunday. Deflection and deflection बचा है तुम्हारा. तो deflection अगले वीक क्या करना है क्लास का भाई बताओ, कैसे करना है? मुझे बोलना पड़ेगा फिर. मतलब आप लोगों का जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं मेरा टाइम एडजस्ट कर लूंगा. अगर आपका नहीं है तो फिर मैं कहीं और मतलब अरेंज कर दूंगा. कितनी क्लास रखनी है? 3 में से पहले तो ये बताओ. 3 में से 3, 3 में से 2, 3 में से 1 टाइप करो सब लोग. अच्छा, Ashi is very confident. She says, "Sir, 1." Apart from you, apart from her, you have option of 0 also. So 0, 1, 2, 3. Come on, guys, yaar. How will I come to know? One, ठीक है, 1. 1 on Sunday. Oh, that's good. So, okay, on Sunday 1. ठीक है. Maybe on Sunday, next Sunday we can plan for a 3. Sunday तक खत्म हो जाएगा आप लोगों का? कोई यार एक बात कर लो मुझसे. Sunday तक मिडटर्म खत्म हो जाएगी आपकी? हाँ सर. तो Sunday को फिर I think we can plan for 3 hours, right? यस सर, चलेगा. हाँ, मैं बात No, कर. sir, it's starting for us. For final year student, it's starting from Monday. Which Monday? This Monday. कौन से मंडे से स्टार्ट हो रहा है? सर 28. हमारी एग्जाम 21st to 25th है फॉर थर्ड ईयर्स. और अच्छा 21st to 25th और फोर्थ ईयर 28th September 28th start हो रहा है सर. 28 स्टार्ट हो रहा है, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है. हाँ, तो मैं ये संडे की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ. अच्छा सॉरी, एक मिनट, आज क्या है? आज 24 है ना, रुक जाओ एक मिनट. आज थर्सडे है. हाँ, तो 28 से स्टार्ट हो रहा है. और फोर्थ, एक मिनट, थर्ड ईयर का कब स्टार्ट हो रहा है? सर हमारा भी 28 को स्टार्ट हो रहा है. और 28 से कब तक चलेगा थर्ड ईयर का? सैटरडे. और फोर्थ ईयर Same. सेम. तो हम तो 5th अक्टूबर की 5th अक्टूबर की बात कर रहा हूँ ना मैं तो. Yes sir. Yes sir. तो 5th अक्टूबर नहीं, 4th अक्टूबर. 4th अक्टूबर को तो कर सकते हैं ना नेक्स्ट वीक में. Yes sir. 4th अक्टूबर को क्लास लगा देंगे एक बस तुम्हारी. और 27 को तो है ही, परसों जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा 28 से No. स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा. 27th में तो है ही ना तुम्हारी प्लान. 27th को रखना है कि नहीं रखना है बताओ. तुम लोग आओगे नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा. 27th चलेगा सर. 27 चलेगा, ठीक है. तो 27 हम लोग रख लेते हैं और फिर उसके बाद संडे टू संडे रहेगी. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा. बट मैं आपका व्यू जान लिया हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी रहे. बाकी जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन. ओके, सो वील ट्राई आवर बेस्ट कि इस तरह से हो. बट व्हाटएवर द मैनेजमेंट विल डिसाइड, आई थिंक सूर्यवंशी सर विल बी डिसाइडिंग ओवर इट एंड ही विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली. ओके,
So any doubt, please ask. Otherwise, you can leave the session. No problem.